Okay, starting off with the infectious diseases which are specifically related to pregnancy or due to the during that are common during the reproductive years. I'll be covering those. First point concerning these is to point number 254. In primary syphilis, best specimen for diagnosis is genital sores. Okay, and I'm just going to read this point and then we're going to go through the explanation. Okay, Hutchison teeth is the characteristic of congenital syphilis. Okay, a 35-year-old male usually goes to Dubai and has a history of immoral sexual activities and doesn't use any protection. He has problem in walking in dark and loses balance. Absent light reflexes, no pain sensation, most likely diagnosis is Stapes dorsalis. Okay, what is Stapes dorsalis? Stapes dorsalis is a slow degeneration of the nerve cells and fibers in dorsal columns of spinal cord. And what does the dorsal column of spinal cord carries? It carries the sensation of fine touch, vibration, two-point discrimination, and proprioception from skin as well as joints. Say yeah? So if this region will be damaged or degenerated, say yeah, dorsal column will be degenerated, so a person will not be able to maintain fine balance. Okay, because of the loss of sense of fine touch, vibration, discrimination, and proprioception. Okay, now, a man who is sexually active was diagnosed with syphilis that he got from his sexual activity 3 weeks ago. Serology was positive. What will be the most probable finding? Penile chancre. Okay, chancre जो है वो syphilis की lesion है और chancroid is syphilis like lesion. ठीक है, जो कि hemophilus ducrei में होती है और वो painful होती है. ठीक है, chancre is painless. Okay, it's a painless ulcer. A 65-year man presented with constricted pupil, non-reactive to light but reacts with accommodation. The patient iris is depigmented in patches. He also gives history of suffering from syphilis. The condition that described is Argyll-Robertson pupil. Argyll-Robertson pupil वही है जो कि इन्होंने define कर दिया कि constricted pupil light को react नहीं करेंगे but accommodation को react करेंगे. और how does it occur कि Treponema pallidum जो कि syphilis का causative agent है, spirochete, it enters the CSF. ठीक है, and it may cause Argyll-Robertson pupil. Okay. A lady delivered a baby having Hutchison teeth, which is a centrally notched teeth found in infection. क्या कौन सी infection हुई है? Syphilis. Gametes necrosis occurs in syphilis. Okay. Now I'll go through two tables of syphilis and then the serology we do for syphilis. Okay, so over here I have this table, okay, and it's showing the characteristic of primary and secondary syphilis, okay. Primary syphilis will occur 2 to 3 weeks after a person contracts the infection, ठीक है. उसमें classic lesion क्या होगी? या genital sore या जिस region से infection transmit हुई है, most probably vulva vagina ही होता है या फिर penile, वहाँ पे chancre होगा, ठीक है. Extent of disease localized होता है to genital region, ठीक है. Lab test VDRL जो कि venereal disease research lab test है वो नेगेटिव होगा बिकॉज वो सीरम में एंटीबॉडीज को चेक करता है. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी विल बी पॉजिटिव. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो हम लीजन की करते हैं. फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है वो भी लीजन से पॉजिटिव होगा. फीटल इन्फेक्शन रेट प्राइमरी इन्फेक्शन में 60% है. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन, ठीक है. बेंजाइन पेनिसिलिन के हम देते हैं 2.4 मिलियन यूनिट्स IM, ठीक है. ओके, फिर कॉन्डाइलोमा लेटा जो है मनी स्पॉट, दिस इज अ करेक्टरिस्टिक लीजन फॉर सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है, जिसमें सिफिलिस फैल जाता है, सिस्टेमिक हो जाता है. VDRL पॉजिटिव आ जाएगा. RPR रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट वो भी पॉजिटिव. डार्क फील्ड एंड FT-ABS भी पॉजिटिव हो जाएगा. और इसके साथ FT-ABS की तरह दूसरा माइक्रो हीमेग्लूटिनेशन टेस्ट ऑफ ट्रिपोनिमल पैलिडम भी करते हैं, MHATP, दैट विल ऑल्सो भी पॉजिटिव. 60% इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट इसका भी है फीटस का, और पेनिसिलिन इसकी भी ट्रीटमेंट है, ठीक है. इवन इफ द फीमेल इज सेंसिटिव टू द प्रेग्नेंट फीमेल इज सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, तो उसको डिसेंसिटाइज करते हैं बाय लोअर डोजेस एंड देन इवेंचुअली द फुल डोज ऑफ पेनिसिलिन इज गिवन, बट देयर इज नो अदर वे अराउंड, यू हैव टू गिव पेनिसिलिन. ओके, ओके, दिस फ्लो चार्ट शोज प्राइमरी सिफिलिस, ठीक है, जिसमें लोकलाइज चैंकर होता है. इफ नॉट ट्रीटेड इट विल प्रोग्रेस टू सेकेंडरी सिफिलिस जिसमें सिस्टमिक सिम्टम्स कॉन्डाइलोमा लेटा आ जाएगा. देन देयर इज अ टाइप ऑफ सिफिलिस नोन एज लेटेंट सिफिलिस, ठीक है, जिसमें सिम्टम्स आर एब्सेंट, फिजिकल फाइंडिंग्स आर एब्सेंट, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट आर पॉजिटिव एंड जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है, हमारे पास. ओके, और ये जो है लेटेंट सिफिलिस कैन गेट रीएक्टिवेटेड इन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. टर्शरी सिफिलिस में सिम्टम्स विल बी प्रेजेंट और वेरिएबल गुमास इन कार्डियोवेस्कुलर, CNS और बोन्स में, ठीक है. ब्लड टेस्ट विल बी पॉजिटिव और CSF में भी हमारे पास जो स्पायरोशीट्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड इफ CNS इन्वॉल्वमेंट इज प्रेजेंट. ओके, ओके, वाइल गिविंग पेनिसिलिन इन सिफिलिस एक जेरिश-ज़ाइमर रिएक्शन हमारे पास हो सकता है विद दैट अकर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ गिविंग पेनिसिलिन टू द सिफिलिस इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ठीक है. और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक, जॉइंट मसल पेन, मायल्जियाज, सोर थ्रोट एंड नोजिया और स्वेटिंग वगैरह, ठीक है.
Okay, now coming to another point which shows congenital infections, ठीक है, which can be transmitted from mother to the child, ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले रुबेला का पॉइंट है, but before going through these points 424 and 425 I would like to do a table. ओके, सो ओवर हेयर, ठीक है, ये जो है इन्फेक्शंस हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वर्टिकल ट्रांसमिशन इनका हो सकता है, ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास अब ये टेबल है जो कि इसको समराइज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकॉकस जो है, ठीक है, उसकी लाइफ लॉन्ग का एक कॉलम है which is shows कि group B streptococcus जो है it will be colonized in the patient in the female's vaginal जो reproductive tract है vagina specially उसमें for life, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, पेनिसिलिन जी, और डिलीवरी का क्या मोड है, पहले तीन जो ग्रुप बी स्ट्रेप है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है एंड रुबेला है, उसके लिए विजाइनल डिलीवरी, ठीक है, बिकॉज विजाइनल और सी सेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसकी ट्रांसमिशन में। टॉक्सोप्लाज्मोसिस और रुबेला दोनों की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, वंस इफ यू आर इन्फेक्टेड यू विल रिमेन इन्फेक्टेड, यू विल सॉरी रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्पीशीज, ठीक है, फॉर लाइफ, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस की ट्रीटमेंट क्या है, पायरीमेथामीन एंड सल्फाडायाजीन, और रुबेला की एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए सिर्फ इफ़ यू आर नॉट यू ऑलरेडी डू नॉट हैव इम्यूनिटी टू इट, इफ अ प्रेग्नेंट फीमेल, तो प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म होने के बाद उसके बाद जो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं रुबेला की, और ठीक है, वंस दैट्स गिवन तो 1 मंथ के लिए कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट्स लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। ओके, नाउ साइटोमेगलोवायरस, ठीक है, और इनकी लाइफ और ये HSV एंड HIV लाइफ लॉन्ग लेटेंसी होगी, इट मीन्स कि वंस इन्फेक्टेड इट विल रिमेन इनसाइड द बॉडी फॉर एवर, ठीक है। फिर ये साइटोमेगलोवायरस की ट्रीटमेंट क्या है, गैनसाइक्लोविर, HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या वेरिसेला की ट्रीटमेंट एसाइक्लोविर है, ठीक है, और HIV की ट्रिपल रेजिमेन है, एंटीवायरल्स हैं, ठीक है, वील डू दैट वंस वी आर डूइंग इन्फेक्शियस डिजीजेज इन डिटेल्स, ठीक है। इनका मोड ऑफ डिलीवरी सिसेरियन सेक्शन करना है, इफेक्टिव HSV, और अगर HIV लोड जो है वो ज़्यादा होता है, वायरल लोड 1000 कॉपी से ज़्यादा होता है, तब हम सी सेक्शन की तरफ जाते हैं, अदरवाइज वी गो टुवर्ड्स द go prefer the vaginal delivery, okay. ओके, नाउ दिस टेबल शोज की फाइंडिंग्स कौन सी आएंगी हमारे पास न्यूबॉर्न में विद वेरियस इन्फेक्शंस, अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन इज अ स्टार फाइंडिंग एंड कोरियोरेटियोनाइटिस, ठीक है, ये जिन सबके साथ प्लस लगा हुआ है दे आर एसोसिएटेड ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन है, ठीक है, और जिनके साथ स्टार लगा हुआ है दे आर एसोसिएटेड विद IUGR, तो यू कैन सी कि रुबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड साइटोमेगलोवायरस जो है वो IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक, वेरिसेला के साथ हमारे पास स्किन स्कार्स हैं, zigzag lesions over the skin and small eyes, ठीक है। रूबेला के साथ डेफनेस है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, ठीक है, और इसके साथ कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। फिर साइटोमेगलोवायरस के साथ पिटेकिए हैं, ठीक है, और साइटोमेगलोवायरस अभी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में या US में इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल डेफनेस एज वेल, ठीक है। रूबेला हैज़ बीन रिकवर्ड ओवर देयर, उसको वहाँ पे कवर कर लिया गया, इनफैक्ट इतनी इम्यूनिटी हो गई है रूबेला की अचीव, लेकिन साइटोमेगलोवायरस स्टिल द लीडिंग कॉज, ठीक है, और हेपेटोस्प्लीनोमेगली है। सिफिलिस में हाइड्रॉप्स हो सकते हैं, ठीक है, व्हेन इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द फीटस, और मैसेरेटेड स्किन, ठीक है, आ सकती है इन फीटस, ठीक है। बाकी हजसन टीथ वगैरह और बाकी चीज़ें वील कवर इन द नेक्स्ट टेबल, ओके। फिर HSV, HIV और HBV की एज सच कोई ट्रांसमिशन नहीं है, और दिस डेल्टा साइन मीन्स कि वेजाइनल डिलीवरी की वजह से जो है ट्रांसमिट होते हैं दीज टू द फीटस, ओके। Okay, now going to point number 424, a pregnant woman presented with German measles. German measles is another name for rubella. At 6 week of pregnancy, which of the following is a child most likely to develop congenital cataract? ठीक है, and vertical transmission will occur during the viremia of primary infection. ठीक है, इसमें reinfection होता नहीं है, lifelong immunity है, intrauterine growth restriction, microcephaly, VST, heart defects, ठीक है, ये होंगे. Most common congenital anomaly overall is deafness. Most common before week 7 is कैटरैक्ट, ओके, यहाँ पे आ जाएं. इन फर्स्ट 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो मोर देन 90% होता है, एंड इट इवेंचुअली डिक्रीजेस टू 5% इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है. मोस्ट ओके, बिकॉज द लेंस ऑफ द आई इज इन द क्रिटिकल फेज ऑफ डेवलपिंग एट दैट टाइम, ठीक है. कॉमनेस्ट कार्डियक एनोमली जो है रूबेला के साथ एसोसिएटेड वो PDA है, इसके अलावा ब्लूबेरी मफिन रैश भी होता है, पैरोस्प्लीनोमेगली भी होती है, ठीक है. 95% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑलरेडी रूबेला IgG पॉजिटिव, ठीक है. A child is born with cataract, ठीक है. Which of the following would have affected his mother during pregnancy? Rubella. How to prevent congenital rubella? Anti-rubella vaccine in reproductive age. Rubella infection to the mother and you want to decide the abortion. What will support your decision? IgM. IgM will show an active infection और IgG जो है वो prevention को show करेगा, ठीक है, कि already protected है.
An expected mother was infected with rubella. Months later, she delivers a full-term baby with no obvious signs of infection. The best is to diagnose acute infection in neonate via parasite-specific ELISA, for which isotype of immunoglobulin IgM. ठीक है. Congenital anomaly of heart diseases associated with rubella (PDA). A pregnant woman got German measles. She consulted her obstetrician, worrying about the baby, which is the most likely complication the baby might develop. Most common जो है वो deafness है. A woman with 5 weeks of pregnancy, in our setup specifically, a woman with 5 weeks of pregnancy contracted German measles. She consulted her obstetrician about the baby. What is the most likely baby might develop? Congenital cataract. Okay, ये options पे depend कर रहा है कि कौन सा दिया हुआ है. During the first before 5 weeks of pregnancy जो है वो हमारे पास ये congenital cataract है. ठीक है. Most common before week 7 cataract दिया हुआ है because lens is in the critical phase of development over there. ठीक है. तो fifth week is before week 7. A young woman is infected with rubella. After 7th week of pregnancy, offspring is likely to have deafness. Before 7th week cataract, after 7th week जो है ये CPSP का बहुत फेवरेट MCQ है कि before 7th week जो है वो हमारे पास cataract आएगा और after 7th week जो है वो deafness आएगा. ओके. नाउ रूबेला जो है वो RNA वायरस है. ठीक है. और थोड़े से इसके और पॉइंट्स कि रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के लिए खुद माइल्ड और लोअर मॉर्बिडिटी कंडीशन है. रूबेला ससेप्टेबल women are those who are not IgG positive already, मतलब जो IgG negative होंगी. ठीक है. They should avoid known rubella cases, then receive active immunization after delivery. Because rubella vaccine is made using a live attenuated virus, pregnancy should be avoided for 1 month after immunization. Okay. Now moving on to point number 425, a baby with Hutchinson teeth, 8th cranial nerve palsy and interstitial keratitis. Diagnosis is congenital syphilis. Torch infections कौन से हैं जो transmit हो सकते हैं from mother to baby? The term torch includes toxoplasmosis, others which are syphilis, hepatitis B, rubella, cytomegalovirus and herpes simplex virus. Infection during the first trimester has the most devastating consequences. Okay, congenital toxoplasmosis की क्या features आएंगे? Hydrocephalus, intracranial calcifications, chorioretinitis. ठीक है. और इसमें it gets transmitted through a cat. क्लासिक अगर MCQ आए कि एक लेडी हुज प्रेग्नेंट हैज़ अ कैट. ठीक है. तो वो शी इज़ एट रिस्क ऑफ तो कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है. फिर कॉन्जेनिटल सिफिलिस मैक्यूलोपेपुलर रैश है जिसको मनी स्पॉट्स कहते हैं. ठीक है. ऑल्सो नोन एज मनी स्पॉट्स जो कि सेकेंडरी सिफिलिस में प्रेजेंट होता है. ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, कोरियोरेटिनाइटिस, हचिसन टीथ, ग्लूटन जॉइंट्स आर द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन. एज 6 to 16 years, tertiary syphilis, knees will swell. Okay, syphilis is the only maternal infection that is associated with recurrent abortions. Okay, this is point is very high yield. ठीक है. Okay. Now moving on to congenital rubella is a condition that occurs in an infant whose mother is infected with virus. ठीक है. Cataracts, deafness, heart defects, PDA. फिर congenital cytomegalovirus. अच्छा, cytomegalovirus और herpes जो हैं वो दोनों DNA herpes वायरस हैं. ठीक है. CMV में हमारे पास पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस आएंगी. ठीक है. कोरियोरेटिनाइटिस, माइक्रोसेफेली, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, डेफनेस, मेंटल रिटार्डेशन, पिटी ओवर बॉडी. ठीक है. और ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ CMV 50% ट्रांसमिशन रेट है वर्टिकल और रीएक्टिवेशन में जो है वो लेस देन 1% है. वी सेड कि CMV HSV वगैरह जो है वो लाइफ लॉन्ग लेटेंसी अचीव करती है. दे कैन बी रीएक्टिवेटेड अगेन एंड अगेन. ठीक है. HSV में जो है वो 3 फॉर्म्स ऑफ द डिजीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड. आइसोलेटेड म्यूकोक्यूटेनियस लीजन, स्किन, आई और माउथ इंक्लूडिंग केराटोकंजक्टिवाइटिस, मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस, डिसेमिनेटेड डिजीज इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स, लंग्स में निमोनिया. ठीक है. लिवर में जॉइंडिस. ठीक है. स्प्लीन को भी हेपेटोस्प्लीनोमेगली एंड ऑफन CNS को भी अफेक्ट करता है. ठीक है. CNS इज दैट इज इंसेफेलाइटिस. ठीक है. एंड स्प्रेड बाय द अच्छा herpes simplex जो है वो वर्टिकली ट्रांसमिट नहीं होगा. ठीक है. और ये जो है स्प्रेड बाय द म्यूकोक्यूटेनियस कॉन्टैक्ट एंड और या फिर अगर जो है कोरियोम्यूनाइटिस हो गया और रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स हैं तो उसकी वजह से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है. ठीक है. और उसमें सी सेक्शन का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता. अगर 8 to 12 आवर्स हो गए हैं रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स को तो फिर आप वेजाइनल डिलीवरी कर लें क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन ऊपर जा चुका है. ठीक है. फिर जो HSV है इसकी प्राइमरी इन्फेक्शन में ट्रांसमिशन रेट 50% है और लेस देन 5% है विद रिकरेंट. ओके. Having said all of this, I want to cover maternal HIV quickly, few highlights of it. अच्छा, maternal HIV की मैनेजमेंट सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि C सेक्शन के लिए प्लान करते हैं 38 weeks if the viral load is more than or equal to 1000 copies. ठीक है.
अदरवाइज विजाइनल डिलीवरी विद प्रिकॉशंस एट 39 वीक्स इज प्लान. ठीक है. स्टार्ट ट्रीटमेंट जो मेडिकेशन है एट 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और कंटिन्यू अंटिल आफ्टर डिलीवरी. ठीक है. इसमें जाइडोविडीन मस्ट है, 2 NRTIs और 1 NNRTI या protease inhibitor. ठीक है. I'm going to cover all these drugs in detail when we do infectious. Okay. Now without this, the transmission rate of the vertical transmission will be 30%. ठीक है. And with treatment it is lower to 10% with vaginal delivery, और सबसे कम जो है वो C section के साथ it is less than 5%. ठीक है. और इसमें जो है breast feeding should be avoided when the mother is HIV positive. Okay. ओके, सो वी हैव कवर्ड द इन्फेक्शंस जो कि वर्टिकली ट्रांसमिट हो सकती है. नाउ वी वांट टू डू द इन्फेक्शंस जो कि कॉमन है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स. ठीक है. क्लेमिडिया एंड गोनोरिया आर टू मेजर कल्प्रिट्स. ठीक है, ऑफ द एसटीडीज. ठीक है. क्लेमिडिया की सीरो टाइप्स हैं. फिर इसमें L1 to L3 जो है वो लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरम कॉज करता है. ठीक है. और सीरो टाइप्स A, B एंड C विल कॉज ट्रकोमा, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस विद कॉर्नियल स्कारिंग. ओके. ठीक है. नाउ कमिंग ओवर हियर टू क्लेमिडिया. ठीक है. क्लेमिडिया में जो है क्लेमिडिया इज एन ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम. ठीक है. इट इज द मोस्ट कॉमन एसटीडी. गोनोरिया से 5 टाइम्स ज़्यादा होता है. ठीक है. और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सिंगल ओरल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन और ओरल डॉक्सीसाइक्लिन फॉर 7 डेज. अवॉइड कॉइटिस फॉर 7 डेज आफ्टर ट्रीटमेंट. ठीक है. टेस्ट हम कैसे करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन पे सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस आएगा, और ये दोनों कॉमन है. टेस्टिंग जो है वो कॉमन है फॉर क्लेमिडिया एंड गोनोरिया. ठीक है. सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस भी कॉमन है, और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट ऑफ सर्वाइकल डिस्चार्ज और यूरिन ये भी कॉमन है. ठीक है. उस पर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर हो जाएगा. ठीक है. कॉम्प्लिकेशंस में PID है, और वर्टिकली ट्रांसमिट अगर हो जाए फ्रॉम मदर बाय द इफ द ट्रैक्ट इज इन्फेक्टेड. ठीक है. वाइल डिलीवरी तो कंजक्टिवाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया कॉज करेगा. ठीक है. ओके. नेसेरिया गोनोरिया जो है इट्स अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकॉकस. ठीक है. और PID इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है. अच्छा, ये 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकती हैं. लोअर ट्रैक्ट में अगर ये इन्फेक्ट करे तो वल्वो विजाइनल डिस्चार्ज अलॉन्ग विद इचिंग, बर्निंग, रेक्टल डिस्कम्फर्ट होगा. अपर ट्रैक्ट को अगर इन्फेक्ट किया है तो बायलैटरल एब्डोमिनो पेल्विक पेन है. डिससेमिनेटेड अगर होगा तो डर्मेटाइटिस, पॉलीआर्थराइल्जिया एंड टीनोसाइनोवाइटिस. ठीक है. अलॉन्ग जो डर्मेटाइटिस में बेसिकली शोज जो इसका रैश होता है. ठीक है. ट्रीटमेंट जो है इसकी टेस्टिंग जो है इसकी सेम है, नार्थ CMT. ठीक है. ट्रीटमेंट में डुअल. जब भी गोनोरिया आ जाएगा टेस्टिंग पे तो फिर भी हम क्लेमिडिया का कवर देंगे, बिकॉज मोस्ट इसकी को इन्फेक्शन बहुत कॉमन है. तो IM सेफ्ट्राइक्सोन इज गिवन फॉर गोनोरिया एंड ओरल सिंगल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन इज गिवन टू कवर chlamydia. Okay. Now moving on to point number 437. A woman presented with vulvar itching and pink frothy purulent vaginal discharge. What is the cause? Trichomonas vaginalis. ठीक है. बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है वो गार्डनेला वेजाइनालिस जो है वो ऑर्गेनिजम्स वो कॉज करते हैं. ठीक है. इसमें जो नॉर्मल फ्लोरा है वजाइना का वो चेंज होता है. ठीक है. वेजाइनल डिस्चार्ज फिशी ऑफेंसिव. इसमें क्लू सेल्स आ जाते हैं. ठीक है. हमारे पास आई एम गोइंग टू शो द इमेजेस ऑफ ऑल दीज. ठीक है. Okay, now might result in low birth weight, preterm labor, late miscarriage. Oral metronidazole for 5 to 7 days इसकी treatment है. Alternative topical metronidazole or clindamycin can also be given. Trichomonas vaginalis, yellow green frothy discharge, strawberry cervix that bleeds on touch, itchy and burning. ठीक है. और ये इसमें flagellated organisms होते हैं. I'm going to show the image. And while metronidazole is used for the treatment for the patient as well as the partner prophylactically. कैनेडा में कॉन्टेक्ट चीज डिस्चार्ज होता है, वल्वाई और इची होता है. ठीक है. यीस्ट है, और इसमें IV सिंगल डोज ऑफ फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं या टॉपिकल एंटीफंगल्स दे सकते हैं. फीमेल विद फिशी स्मेल, वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लू सेल सीन और माइक्रोस्कोपी. व्हाट इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस? metronidazole to both partners in Trichomonas vaginalis, or the most common organism causing preterm labor is bacterial vaginosis. Okay, now the images of these. Okay, these are clue cells. ठीक है. इसके पास सारी ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. these are cells loaded with organisms. ठीक है. now I'm gonna show the okay, this is Trichomonas vaginalis, flagellated organism. Okay. And this is cottage cheese discharge. Okay. Vulvovaginal candidiasis. Okay. And we have सर्टन पॉइंट्स लेफ्ट. ओके. अच्छा, विद अल्सर्स कौन कौन से STDs हैं? जो कि चैंक्रोइड, हिमोफिलस ड्यूक्रियाई है, ग्रैनुलोमा इंग्वाइनेल है, जेनिटल हर्पीज है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेलिरिनम है एंड सिफिलिस है. ठीक है. नो अल्सर्स इन क्लेमिडिया, HPV, गोनोरिया, हेपेटाइटिस B और HIV. पेनफुल अल्सर्स कौन कौन से हैं? हर्पीज एंड चैंक्रोइड बाय हिमोफिलस ड्यूक्रियाई विच मेक्स यू क्राई. ओके. चैंक्रोइड पेनफुल, रैप्ड, सॉफ्ट एज इज इन्फ्लेम्ड. LGV में ग्रूव साइन होता है, दैट इज द जो जेनेटोक्रूरल फोल्ड होता है वो डबल हो जाता है. ग्रेनुलोमा इंग्वेनियल का जो अल्सर होगा वो बीफी रेड होगा. कल्चर पे डोनोवन बॉडीज आएंगी. सिफिलिस में रोल्ड हार्ड एज होता है, और हर्पीज में पेनफुल स्मूथ एज दैट इज इन्फ्लेम्ड. ओके. और एंड दैट्स प्रीटी मच इट. ओके.
we have covered the infections related to reproductive.